Hello everyone, welcome to the channel Adarsh. I'm Guneet Kaur, content creator of Adarsh. So today I'll take you through the journey of biomolecules. मैंने जैसे बताया था कि हम बायोमोलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है CSIR नेट प्रिपरेशन का। एंड हम स्टार्ट करेंगे विद द स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन of biomolecules. Okay, so as a biochemistry expert, I'm delighted to present to you this PPT on biomolecules, the building blocks of life. ये building blocks of life हमने पहले भी कहीं सुना है, that is we say cells are the building blocks of life, but then कुछ भी सेल हो या टिश्यू हो, कुछ भी जो ऑर्गेनाइजेशन दैट मेक्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन और लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज मेड अप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। दे आर द इनिशियल वंस, लाइक उससे ही स्टार्ट होती है लाइफ। तो हमें लाइक CSIR की जर्नी को हम स्टार्ट करने से पहले वी शुड नो द बेसिक्स, वी शुड नो द like the smallest particle which is involved in the function first of the whole organism, that is the biomolecules. Okay, so join with me today to explore the fascinating world of carbohydrates, lipids, proteins and nucleic acids. Today, you know that the main biomolecules that we talk about and we study in detail are the carbohydrates, lipids, proteins, and nucleic acids. Okay, so I am Guneet Kaur. Again, I introduce myself. I am Guneet Kaur, expert content strategist of Adarsh. Okay, so first we start with carbohydrates. Now, whenever I teach or I study anything related to science, I try to break the words and try to get the answer from the word itself. Okay, so when we talk about carbohydrates, what are its components? First, we'll talk about the structure. तो क्या चीजों से like carbohydrate, कौन से molecule, कौन से हम substance को बोलेंगे कि it is a carbohydrate? तो first thing is that it should be composed of carbon, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स। सो ये तीन एटम्स को मिला के उसके अलग कॉम्बिनेशंस बना के इट फॉर्म्स अ कार्बोहाइड्रेट। अब इसका जो स्टेबल फॉर्मूला है वो है CN, ब्रैकेट में हम डालते हैं H2O एंड देन क्लोज ब्रैकेट N। सो दिस N इज द वेरिएबल। अब उसमें जितने भी हम नंबर्स डालें तो उसी तरीके से चेंज होता है एंड देन that is how the composition of the carbohydrates change. Okay, and this is how they exist in their three forms. Either they act like either they are present as monosaccharides, that is, again, if you break the word, mono means single, saccharides means sugar. तो सिंगल शुगर मॉलिक्यूल से जो बनता है, ये स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कि इसमें सिंपल ग्लूकोज यूनिट, सिंपल एक मोनोसैकेराइड का इसमें लाइक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, एंड देन कार्बोहाइड्रेट्स कैन आल्सो बी प्रेजेंट एज डाइसैकेराइड। अगेन ब्रेक द वर्ड, डाई मींस टू, सैकेराइड मींस शुगर। तो डाइसैकेराइड इज अ टू शुगर मॉलिक्यूल लिंक्ड टुगेदर। नाउ क्विकली यू हैव टू पुट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कौन से डाइसैकेराइड्स के एग्जांपल्स के बारे में पता है। अगर आपको पता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डालो एंड देन आई विल just tell you the correct answer. Okay, and then as I told you, carbohydrates, they can exist as monosaccharide, disaccharide and polysaccharides. Okay, now when we talk about polysaccharide, poly means बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट्स के साथ, poly means many. Okay, so बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट्स, बहुत सारे बेसिक यूनिट्स को मिला के पॉलीसैकेराइड्स बनते हैं। अब आप ये भी डाल दो कि कौन से, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स व्हिच यू नो ऑफ, so please do put it in the comment section. Okay, so here it is written that polysaccharides are complex carbohydrates composed of many sugar units. Okay, as I discussed, carbohydrates का basic, like since they are composed of carbon, hydrogen and oxygen atoms, तो hydrogen और oxygen water के ही form में है and that is within the brackets and we just put the N out of it and then C में भी N होता है। तो then this formula is the stable formula of carbohydrates and then based on the like type of saccharide we just change the values. Okay, तो अब हम आगे जाएंगे टाइप्स पे, दैट इज द मेन टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इफ द एग्जांपल्स आर गिवन, दैट इज स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज। तो अब आपको ये टास्क है कि आपको बताना है कि स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज को हम कौन से टाइप ऑफ
कार्बोहाइड्रेट में कैटेगराइज करेंगे, इज इट मोनोसैकेराइड, इज इट डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में ये सब डाल दो। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आई जस्ट वांटेड टू से कि मैंने ये पीपीटी हमारा बस बेसिक, अभी हम बेसिक चीजों को बस टच करेंगे। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे, I'll discuss in detail जो जो हमें मेन, सिंस ये क्रैश कोर्स है तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जा सकते, बट देन we'll touch on the main topics which will be highlighted and asked for in the exam, any competitive exam. It is not particularly for CSI or NET just, but then you can, even if you are preparing for GATE and other like competitive exams for PhD and all, so then this will be a good. So please do subscribe to our channel, that is Adarsh Shalvam. ओके, सो आज हम जैसे सिर्फ बेसिक चीजों को टच करेंगे, तो अभी हम लाइक डिटेल्स में शेयरिंग और ये सब बायोमोलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे आगे स्लाइड्स में। बट मेरा एक चीज रहेगी कि मैं बीच बीच में क्वेश्चंस भी पूछूंगी जो आप आंसर करोगे कमेंट सेक्शन पे, एंड प्लस आपको मैं हर प्रेजेंटेशन के लास्ट में एक क्वेश्चन दूंगी जो आपको सॉल्व करना है, और मैं अगले प्रेजेंटेशन में आपके साथ वो सॉल्व करूंगी, ठीक है, और उसका आंसर भी बताऊंगी। ओके, सो नेक्स्ट इज वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कॉम्पोजिशन एंड द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो पहला तो इसका फंक्शन, कॉम्पोजिशन तो हमने बताया कि इट इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स, एंड मैंने वो फॉर्मूला भी आपको बताया जिसको रेशियो में अगर हम लिखे तो इट विल बी 1:2:1, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, अब हमारे पास लाइक कार्बोहाइड्रेट्स अगर हमारे बॉडी में है, हम बहुत इनिशियल क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो इट इज बेसिकली टू सर्व एज एनर्जी सोर्स। तो इमीडिएट एनर्जी सोर्स, इमीडिएट एनर्जी सोर्स हमारा कौन सा है, जल्दी से कमेंट्स में लिख दो, ठीक है। तो carbohydrates, first and main function of it is that it acts as an energy source, ठीक है। सेकेंड है इसका, it provides structural, it acts as a structural unit। कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर देते हैं, स्पेशली लाइक इसमें अगर एग्जांपल दे तो दैट इज इन प्लांट सेल वॉल, ठीक है। और प्लस हम आगे पढ़ेंगे तो फिर हमें और जानने को मिलेगा अबाउट प्लांट सेल वॉल एंड देन अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑल दैट, ओके। तो ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के दो मेन फंक्शंस हमने डिस्कस कर लिए। तीसरा हुआ सेल सिग्नलिंग। तो जब मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वहां पे मैं आपको ये भी पॉइंट आउट करूंगी किस तरीके से सेल सिग्नलिंग में भी हेल्प करता है और कार्बोहाइड्रेट्स का क्या रोल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लाइक कॉम्पोजिशन पे, ठीक है। चलो, तो फिर हम नेक्स्ट अभी डिस्कस करेंगे लिपिड्स, ठीक है। हमने पहला बायोमोलिक्यूल डिस्कस कर लिया है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, विच इज अगेन विच एक्ट्स एज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। उसमें हमने पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ये सब के बारे में भी डिस्कस किया, ठीक है। अब आगे हमारा फैट्स, ठीक है। तो फैट्स आर ऑल्सो, फैट्स बोलो या लिपिड बोलो, बात एक ही है, ठीक है। अब हम उसके स्ट्रक्चर टाइप्स पे जाएंगे। तो पहला उसका स्ट्रक्चर कैसे है, इट इज दे आर मॉलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हमने कार्बोहाइड्रेट में पता किया था कि इट इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। तो लिपिड्स क्या है, लिपिड्स आर कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ओके। तो इसमें हाइड्रोजन कार्बन गए, और एंड नॉन पोलर रीजन्स दैट आर हाइड्रोफोबिक। अब ये नॉन पोलर क्या है, हम जब पोलैरिटी की बात करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, तो जब एटम्स आयनिक स्टेज पे है तो पॉजिटिव नेगेटिव वो आया, बट देन हम स्टैटिक एनर्जी की भी बात करते हैं। स्टैटिक एनर्जी में सपोज इफ द बॉडीज आर रब्ड और हायर टेम्परेचर पे चले गया, तो वो एक्साइटेड होके दे जस्ट चेंज देयर लाइक फॉर्म्स, ओके। जैसे हमने सिंपल सा ये पढ़ा है कि अगर लाइक आइस है, ठीक है, उसको हम हीट करेंगे, चेंजेस इनटू वाटर, एंड देन उसके बाद उसको और ज्यादा हीट करेंगे, उसकी स्टेबिलिटी बिगड़ जाएगी एंड इट विल चेंज इनटू द गैसियस फॉर्म, ओके। तो अब हम ये जब बात करते हैं हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, अभी आगे हमें ये सब पे बहुत डिस्कस करना है और इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, ठीक है। मजा तो बहुत आएगा, लेकिन धीरे 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 वी हैव टू जस्ट स्टे बैक एंड अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट, ओके।
सो लिपिड्स का ये है कि इट इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड नॉन पोलर रीजन्स दैट आर हाइड्रोफोबिक। अब जैसे हम जब किचन में जाते हैं तो किचन में आपने देखा होगा स्लैब में कभी तेल गिर गया, ठीक है, तो तेल के आप देखोगे अगर आप उसमें पानी से लाइक पानी के ड्रॉप्स वहां पे गिरा दो तो वो तेल तेल अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है, बिकॉज दे डोंट गेट मिक्सड अप। Why? Because this lipids or fats, they are hydrophobic in nature. इनको पानी से बहुत डर लगता है। हाइड्रोफोबिक मैंने जैसे बोला, वर्ड को आप अगर ब्रेक करो, हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स डर लगना। तो पानी से लिपिड्स को भैया पानी से बहुत डर लगता है, ठीक है। अब उनके टाइप्स पे अगर हम जाएं तो दे इंक्लूड्स फैट्स, ऑयल्स, वैक्स, स्टेरॉइड्स, फॉस्फोलिपिड्स। मैंने लिपिड्स को बहुत सिंपली आपको पहले बोल दिया कि फैट है, ये वो है, बट देन अदर टाइप उसके और भी है, दैट इज वैक्सेस, स्टेरॉइड्स, ये सबको भी हम उसी में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अब ये फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड तो कहीं सुना सुना है। फॉस्फोलिपिड हमारा कहाँ लाइक मेन कंपोनेंट होता है, that is in the plasma membrane. Okay, so now quickly put in the comment section what is the plasma membrane also called as। ये तो मुझे लगता है सबको पता होगा, बट मुझे बस आपकी अटेंटिवनेस जाननी है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन पे डालो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं। और ठीक है, तो अब हम जाएंगे कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ लिपिड्स के कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन में। हमने स्ट्रक्चर की बात कर ली, टाइप की बात कर ली, अभी उसका कॉम्पोजिशन भी हमने बताया कि वो हाइड्रोकार्बन से बना होता है, और उसके वो लाइक किन पार्टिकल्स से बना होता है, दैट दे पार्टिकल्स नहीं, मतलब उनके स्ट्रक्चर जो है दे आर हाइड्रोफोबिक। ये हमने नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट आप याद रखना, ठीक है। अभी हम फंक्शन जब हम बोले तो फैट्स क्या करते हैं हमारे बॉडी में। हम आजकल तो जितने भी आप प्रोडक्ट्स बाय करो तो पीछे में कंपोनेंट्स लिखा होता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फैट, पूफा मुफा, ये सब सब लिखा रहता है। तो आपको लाइक लिपिड्स या फैट्स हमें क्यों जरूरी है? इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ये हमारे लाइक स्टोर्ड रहता है बॉडी में, एंड इंस्टेंट एनर्जी, तो ये ब्रेक डाउन होता है। ये इंस्टेंट एनर्जी तो नहीं देता है लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, बट देन लिपिड्स को लाइक इट इज अ स्टोर हाउस, एंड देन उसको ब्रेक कर करके फर्दर then it gives the energy. Okay, so it is also it acts as a source of energy. It serves as a structural component of cell membrane। जैसे कि मैंने बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा है, वो किससे मेनली तो बना है, फोस्फोलिपिड से ही। तो वो एक हमारा मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। कोई भी सेल में सेल मेम्ब्रेन की क्या जरूरत है? सेल मेम्ब्रेन हाँ सेल को डिवाइड कर देता है फ्रॉम द आउटर कंपोनेंट, एंड द सेल इज देन कैटेगराइज्ड एज अ सेपरेट एंटिटी, राइट। तो इसीलिए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ये लिपिड्स का बहुत बड़ा रोल होता है। और हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से लिपिड्स ये स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखते हैं, मतलब वो डिस्टर्ब नहीं हो जाते हैं in the normal environment. Okay, and the next function is that it acts as insulation for vital organs। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि malnourished बच्चा है, ठीक है, malnourished एज इन उसको अगर फैट्स की बहुत कमी है, बहुत ही पतला है, बहुत ही मतलब अच्छे से खा पी नहीं रहा है, तो फैट्स की कमी है। अब वो बच्चा अगर इधर उधर घूम रहा है तो उसे हीट स्ट्रोक की ज्यादा लाइक प्रोबेबिलिटी रहती है। क्यों? क्योंकि लाइक लिपिड्स कम है बॉडी में, इट डजंट एक्ट एज अ इंसुलेंट, एंड देन बच्चे को हीट स्ट्रोक हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा बहुत घी ऑयल भी खाना चाहिए, इतने आप लोग हेल्थ कॉन्शियस मत रहना, ठीक है। तो अब हम आगे लाइक लिपिड्स के तो बहुत अभी आगे और हमें लाइक पढ़ना है, एंड देन आप लोगों ने अगर आंसर कर दिया कि सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फैट्स में कौन से अच्छे हैं, तो फिर इसका आंसर है अनसैचुरेटेड फैट। लेकिन क्यों अच्छे अनसैचुरेटेड फैट, ये मैं आपको नेक्स्ट अपने क्लास में बताऊंगी, ठीक है। तो अब हम लिपिड्स का मेन क्वेश्चन आते हैं मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, दैट इज लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर के बारे में कुछ ना कुछ तो आपको या तो सी सेक्शन पे आएगा, सी सेक्शन एज एन ABC सेक्शन जो है हमारा CSIR नेट का, तो सी सेक्शन में जरूर एक क्वेश्चन तो आता ही आता है फॉस्फोलिपिड के बारे में। इसलिए इसको समझना और इसके डिटेल्स को जानना, इसके कॉन्सेप्ट को जानना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। So the phospholipid molecules, they arrange themselves to form a stable lipid bilayer, which is a critical component of all cellular membranes, ठीक है, this we already know. Now
अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये इमेज में ऊपर एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइसिली, MICELLE, ठीक है, इसको माइसिली भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ये एक जो है, ये एक यूनिट एक फॉस्फोलिपिड है। ओके, नाउ दीज लिपिड स्ट्रक्चर्स फॉर्म स्पॉन्टेनियसली, जो ऊपर की इमेज है उसके बारे में बताया कि दे स्पॉन्टेनियसली लाइक फॉर्म दिस सर्कुलर स्ट्रक्चर, अगर ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और उनको कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे हमारे एनर्जी सोर्स कुछ भी लाइक सेल्यूलर एक्सचेंज या कुछ भी लाइक अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है तो उसमें एटीपी की यूजेज होती है। बट यहाँ पे जब लिपिड बाइलेयर सर्कुलर फॉर्मेशन इन लाइक स्टेबल एनवायरमेंट बना लेता है तो इट डजंट रिक्वायर एनी एनर्जी। ओके, तो ये अभी सर्कुलर क्यों बनाता है मैं आपको ये आगे बताऊंगी, ठीक है। तो जब ये सर्कुलर बना लेता है, लेकिन ईच जो फॉस्फोलिपिड का यूनिट है, दे इंडिपेंडेंट फॉस्फोलिपिड्स आर अनस्टेबल इन वाटर, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि हाइड्रो जो लिपिड्स है वो हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। हाइड्रोफोबिक मतलब इनको पानी से बहुत डर लगता है, तो ये पानी से बहुत डरते हैं, इसीलिए क्या करते हैं, वो एक साथ कोहेज कर लेते हैं, एक साथ वो जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो वो एक माइसिलर स्ट्रक्चर बन जाता है इन स्टेबल एनवायरनमेंट। तो ये हाइड्रोफोबिक टेल्स जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को डिस्टर्ब कर देते हैं व्हेन टेल्स इंटरेक्ट विद वन अनदर। जैसे ये अभी आप देख रहे हो जो बाइलेयर अरेंजमेंट है नीचे में, ये आप देख रहे हो, तो उसमें क्या होता है, टेल्स इंटरेक्ट विद वन अनदर एंड रीच अ लोअर पोटेंशियल एनर्जी स्टेट। अब जैसे मैंने आपको बताया, मैटर के स्टेट को हम अगर दूसरे स्टेट पे लेके जाना हो तो हम उनकी एनर्जी लेवल, उनकी एंट्रोपी लेवल हम उनको बढ़ा देंगे, तो जब वो इंक्रीज हो जाता है तो मैटर अनस्टेबल हो जाता है, उसमें लाइक बहुत स्टेबिलिटी नहीं रहती, तो वो दूसरे फॉर्म स्टेट ऑफ मैटर में चले जाता है, ठीक है। तो अगर ये जो लिपिड बाइलेयर फॉर्मेशन होती है, इसमें ये एक लोअर एनर्जी स्टेट में उसको ले जाती है, ठीक है। तो अगर लोअर एनर्जी स्टेट में चल जाएगी तो उसमें एनर्जी तो और रहेगी नहीं, तो वो कैसे लाइक अनस्टेबल नहीं रहेगा इन नॉर्मल एनवायरनमेंट। अगेन मैं बोल रही हूँ, इन नॉर्मल एनवायरनमेंट, दैट इज अगर मैं उसको डिस्टर्ब करूँ, कुछ छेड़खानी करूँ, तो भाई वो तो गुस्सा हो जाएगा, उसकी एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी और फिर वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये तो होता है, बट देन वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ लाइक दिस फॉस्फोलिपिड फॉर्मेशन है like is stable in the bilayer arrangement. Okay, तो formation of these structures clearly decrease entropy, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एंट्रोपी अगर इंक्रीज हो जाएगी तो स्टेट ऑफ मैटर लाइक वो अनस्टेबल हो जाएगा। स्टेट ऑफ मैटर से लेके कुछ भी कंपोनेंट है, अगर उसकी एनर्जी, इनर एनर्जी बढ़ जाएगी तो इट विल change its form or get disrupted or any such thing will happen. Okay, तो ये हमने अभी जाना कि किस तरीके से लिपिड बाइलेयर इट remains in the stable form, ठीक है। तो इट रिमेन्स इन द बाइलेयर फॉर्मेशन, जैसे आप माइसेलर में देख रहे हो, एक स्ट्रक्चर ही ऐसे गोल गोल करके वो कोहेस कर गया, लेकिन इन द बाइलेयर स्ट्रक्चर इट इज मेंटेन्ड इन द स्टेबल इन द रूम एनवायरनमेंट। ओके, तो ये हो गया। अब हम जाएंगे प्रोटीन्स पे। प्रोटीन्स पे जाने से पहले मुझे आपको एक क्वेश्चन पूछना है, दैट इज प्रोटीन्स का बेसिक यूनिट क्या है, ठीक है। अगर आपको पता है प्रोटीन, ये आपने बहुत इनिशियली पढ़ा होगा, बस मुझे अपने स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत जानना है, दैट इज प्रोटीन्स का बेसिक यूनिट क्या है, ये आप जल्दी से कमेंट सेक्शन पे डाल दो, ठीक है। तो इसके फिर हम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे आगे, दैट इज इट्स स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड फंक्शन। तो लाइक प्रोटीन्स, अभी हम पहले कार्बोहाइड्रेट्स का पढ़ लिया हमने, लिपिड्स के बारे में पढ़ लिया। अब प्रोटीन का क्या है रोल, लाइक दे आर कंपोज्ड ऑफ एमिनो एसिड्स। अभी मैंने बोला, आपसे पूछा कि व्हाट आर द बेसिक यूनिट्स दैट फॉर्म अ प्रोटीन, दे आर कॉल्ड एज एमिनो एसिड्स। सो जिन जिन लोगों ने एमिनो एसिड्स लिखा है, वेरी गुड। तो दे आर कंपोज्ड ऑफ एमिनो एसिड्स विच आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। ओके, अभी हम जब स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे, स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। आप लोग अगर कोई सोच रहे हैं कि CSIR नेट करें या क्या करें या B.Ed कर लें और जॉब कर लें, तो ये आपको स्टेबिलिटी लेके आनी है, मतलब इधर उधर नहीं करते रहना है। जो आपका फोकस है अर्जुन की तरह, बस उसी पे फोकस रखना है। और ये क्रैश कोर्स इसीलिए है, तो आप जरूर जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।
ठीक है। ओके, तो आगे हम लोग यहाँ पे दैट इज एमिनो एसिड्स आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स एंड दे हैव 4 लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर। अब जब मैं बोलती हूँ, जैसे मैंने बोला सबकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, तो ये प्रोटीन्स जैसे हमने देखा फॉस्फोलिपिड कैसे स्टेबल है, बाइलेयर फॉर्म करके, ठीक है। तो प्रोटीन्स जो हैं ये कैसे स्टेबल रहते हैं या अलग अलग फॉर्म डेवलप करते हैं, दैट इज थ्रू दीज पेप्टाइड बॉन्ड्स। वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करके रखते हैं थ्रू दी पेप्टाइड बॉन्ड्स, ठीक है। अब उनके 4 लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर है। 4 लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर मतलब वो 4 तरीके से, लाइक if I talk about like 2-dimensional or 3-dimensional or quaternary structure, these are the structure that the protein attains again to attains stability. अब वो इधर उधर भटकने से अच्छा है वो अलग अलग फॉर्म्स बना के और उस तरीके से वो मेंटेन रहते हैं। मैंने अभी भी बताया कि ये हमारी जो पीपीटी है दिस इज जस्ट टचिंग ऑन द बेसिक पॉइंट्स एंड देन आगे जाके मैं सब में इलेबोरेट करूंगी एंड प्लस क्वेश्चंस मैं जरूर दूंगी और आपको हर क्वेश्चन पीपीटी के एंड पे आएगा जिसका आपको आंसर करना है और अगले पीपीटी में आपको उसका आंसर मैं डिस्कस करूंगी, ठीक है। ओके, ठीक है। अब हमने स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया, प्रोटीन्स का, प्रोटीन का बेसिक यूनिट हमने डिस्कस कर लिया दैट इज एमिनो एसिड्स। अब हम जाएंगे टाइप्स में, ठीक है। अब द मेन टाइप्स ऑफ प्रोटीन इंक्लूड एंजाइम, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड स्टोरेज प्रोटीन। तो ये बस एक बेसिक सा लाइक डिफरेंट कैटेगरी दे दी है प्रोटीन को, दैट इज एंजाइम्स, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड स्टोरेज प्रोटीन। जैसे कि मैं बिगिनिंग से बोल रही हूँ, जो वर्ड है, टर्म है, उसी में आंसर है, ठीक है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या करेगा भाई, वो स्ट्रक्चर देगा बॉडी को। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या करेगा, वो हेल्प करेगा एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस में। स्टोरेज प्रोटीन जो स्टोर करेगा, ठीक है। अब व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स को हम लोग केमिकल मैसेंजर्स भी बोलते हैं। कुछ भी एक नॉर्मल रिएक्शन हो रहा है बॉडी में तो ढेर सारे रिएक्शंस हो ही रहे हैं। तो जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं उसको नॉर्मल स्टेट, जो उसका लाइक यूजुअल स्टेट है, जिस वे से वो रिएक्शन हो रहा है उसको एक्सेलरेट या डिसेलरेट करते हैं। एक्सेलरेट मतलब या तो बहुत बढ़ा देंगे उसकी स्पीड या तो उसकी स्पीड बहुत घटा देंगे। तो ये रोल होता है हमारे एंजाइम्स का, ठीक है। और एंजाइम्स क्या होते हैं, तो एक तरीके के प्रोटीन्स ही होते हैं। अब आ गया, जैसे मैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन की अगर बात करूं तो जैसे सिंपल मैं एग्जांपल दे दूं कि ये आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन पे कि कौन से एग्जांपल्स है स्ट्रक्चरल प्रोटीन के। ओके, फिर मैं उसको वैलिडेट करूं। नेक्स्ट, composition and function. Proteins are involved in virtually every aspect of biochemical process in the body, including catalysis, transport and signaling. जैसे हमने टाइप्स के बारे में डिस्कस किया तो उसी को हम लोग फंक्शंस में डाल दिए कि कैटालिसिस में मैंने जैसे बोला एंजाइम्स आर आल्सो कॉल्ड एज केमिकल मैसेंजर्स, देन ट्रांसपोर्ट एंड देन इन सिग्नलिंग आल्सो। ओके, नाउ कम्स न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड जब भी हम बोलते हैं तो वी थिंग्स लाइक आरएनए एंड डीएनए क्लिक इनटू आवर माइंड्स। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कैसा स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है डीएनए का, कैसा स्ट्रक्चर है आरएनए का। आरएनए तो भाई सिंगल स्ट्रैंडेड है, वो तो अकेला रह सकता है। डीएनए हमारे सोशल एनिमल है हमारे तरह, इट रिमेन्स विद अ कपल लाइक जस्ट द नेक्स्ट एंड देन वो ऑपोजिट पोलैरिटी वाले हेलिक्स के साथ वो कॉइल्ड और सुपर कॉइल्ड होता है, ठीक है। वो सब हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम बेसिकली बस जाने कि न्यूक्लिक एसिड का they are composed of nucleotides each consisting of a sugar, a phosphate and a base. शुगर, फॉस्फेट और बेस के मिला के बन जाता है हमारा न्यूक्लियोटाइड्स, और न्यूक्लियोटाइड्स मिला के बन जाते हैं, एक सेट में बन जाते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। एंड इनका भी प्राइमरी या सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगेन हम अगर अलग अलग चेंज करें अपने स्ट्रक्चर्स तो इट इज ड्यू टू द लाइक डिफरेंट अरेंजमेंट्स कि वो प्राइमरी स्ट्रक्चर हुआ, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हुआ, ऐसे। ओके, अब हमारे आगे टाइप्स, ठीक है। टाइप्स मैंने आज डिस्कस किया, टाइप्स या रादर आप बोल सकते हो एग्जाम्पल, दैट इज डीएनए एंड दैट इज आरएनए। अब डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में डालोगे विद करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। तो जल्दी से आप कमेंट सेक्शन पे डाल दो डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म। ओके,
उसके बाद हम अभी बात करते हैं फंक्शन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड्स दे स्टोर एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन, एज यू ऑलरेडी नो, डीएनए, आरएनए ये सब है हमारा। तो ये क्या करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है। डीएनए को तो हेरिडिटरी कैरियर बोलते ही हैं। तो इट transmits genetic information. It provides a template for protein synthesis and regulating cell function. अब आपने तीन टर्म्स तो जरूर सुने होंगे, दैट इज रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो जिनको जिनको ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बारे में पता है, जस्ट उसका एक लाइक डेफिनेशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दो, ठीक है? तो मैं अभी जल्दी से उसको डिस्कस कर दूंगी। न्यूक्लिक एसिड्स अगेन बोला है कि इट हेल्प्स इन द लाइक इट स्टोर्स एंड आल्सो ट्रांसमिट्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन। सो भाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन हमारी लाइफ कोई एग्जिस्ट ही नहीं करेगी विदाउट द लाइक बायोमोलिक्यूल्स। दैट इज वाई अभी आप कंक्लूड कर सकते हो कि उनको क्यों बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, ठीक है? बिकॉज ये है, और फंक्शन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स है, न्यूक्लिक एसिड्स है, ये हमारे लिपिड्स है, इनके बिना हमारा कुछ है ही नहीं, ठीक है? हम बन ही नहीं पाएंगे। ओके, सो ये है। अब मैं जस्ट आपको ब्रीफली बता देती हूँ, अगर आपने कमेंट सेक्शन में डाल दिया हो तो। रेप्लिकेशन से क्या होता है? रेप्लिकेशन मीन्स डीएनए अपने ही रेप्लिका, मैंने बोला था टर्म में ही आप आंसर ढूंढो। रेप्लिकेशन कौन कर रहा है? डीएनए करता है, जो अपना ही रेप्लिका, अपना ही डुप्लीकेट बना देता है, अपनी ही कॉपी बना देता है। दैट इज थ्रू रेप्लिकेशन। ओके, उसके बाद आता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि एक दूसरे में कोडिंग पास कर रहे हैं, ठीक है? ये सब कोडर्स ज्यादा वर्ड यूज करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है? तो उसमें क्या होता है? डीएनए एमआरएनए बना देता है, जो मतलब उनके इसके सब्सिक्वेंट लाइक न्यूक्लियोटाइड्स पास करता है, वही न्यूक्लिक एसिड, एंड देन वो कोडिंग मैच करके एक एमआरएनए बन जाता है, ठीक है? तो दिस प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। और लास्टली आता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में ट्रांसलेट कर रहे हैं, अगर हम स्पेनिश को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो उसी तरीके से उसका मीनिंग वही रहेगा, बट देन यू चेंज द लैंग्वेज। तो एमआरएनए अपनी लैंग्वेज किस तरीके से चेंज करता है? प्रोटीन बना के। तो दैट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ओके, तो जिन जिन लोग ने ये आंसर करेक्ट दिया है कमेंट सेक्शन पे, उनके लिए चलो भाई। अब हम जाएंगे स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन बिटवीन बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है? बायोमोलिक्यूल्स को कुछ तो चाहिए स्टेबलाइज होने के लिए। हमने कुछ कुछ ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस कर लिए हैं, जैसे हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कैसे वो स्टेबल है भाई? बाइलेयर बना के वो दो एक साथ ऐसे ज्वाइन करके, ज्वाइन तो नहीं होते बट देन कुछ स्पेस रहता है। और वो स्पेस क्यों रहता है? क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक नेचर में होते हैं, तो वो किसी पानी को भी अंदर नहीं जाने देते उस तरीके से। तो वो अपनी स्टेबिलिटी तो वैसे बना के रखे, ठीक है? अब ये जो मेन बॉन्ड्स है, इनके मैं डिटेल में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, बट देन बेसिकली यू शुड नो कि व्हाट आर द बॉन्ड्स दैट होल्ड देम टुगेदर। ओके, इसका क्योंकि बार बार लाइक मैं डिस्कस भी करूंगी, तो उसमें ज्यादा इलेबोरेशन में आएगा, ठीक है? पहला हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनता है बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स। मैंने अभी पोलैरिटी के बारे में बात की, जैसे हमारा डीएनए है, ठीक है? 5' 3' हम बोलते हैं, फिर होता है 3' 5', दोनों जो हेलिक्स जॉइंट रहते हैं, एक होता है 5' जैसे ये हो गया 5' और 3', और ये ऐसे हो जाएगा इसका। ये अगर 5' है तो उसके साथ 3' वाला एक साथ रहेगा, ठीक है? और वही हेलिक्स ऐसे करके बनते हैं। ओके, तो इसमें बेसिकली बताया है, तो ये जो पोलैरिटी होती है उन दोनों के बीच में, दैट इज बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स। जिनमें पोलैरिटी होगी, जिनके ऑपोजिट चार्जेस होंगे, वही हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकते हैं, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट फॉर स्टेबलाइजिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड डीएनए डबल हेलिक्स। मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, ये आपका फर्स्ट हेलिक्स है, इसमें है 5' 3' पोलैरिटी, और ये ऑपोजिटली इसमें अगर 3' है, इसमें 5' है, तो इस तरीके से ये हेलिक्स बना देगा, ठीक है? और वो स्टेबलाइज हो जाएगा, और वो हेलिक्स के बीच में क्या आ गया? हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है कि डीएनए के कुछ ऐसे केस स्टडी वाले क्वेश्चंस आते हैं सी सेक्शन में, सेक्शन सी में,
अब मैं सेक्शन सी बोलूंगी, सी सेक्शन नहीं बोलूंगी, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो तो सेक्शन सी में CSIR नेट के ये वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि हाँ कैसे स्टेबलाइज हुआ, कौन सा ब्रेक हुआ बॉन्ड, तो दैट इज थ्रू दी हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, तो पोलैरिटी चाहिए भैया हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए। अब आ गया हमारा वैंडरवाल्स इंटरेक्शन। वैंडरवाल्स इंटरेक्शन जो होते हैं ये बहुत ही वीक फोर्सेस होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हमने पढ़ा है केमिस्ट्री में कि हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे वीकेस्ट होता है, बट उससे भी वीक होता है वैंडरवाल्स इंटरेक्शन। ठीक है, क्योंकि ये बस बनता है फ्लक्चुएटिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज, मतलब थोड़ा बहुत अगर इलेक्ट्रॉन में चेंजेस आए तो वो टेम्पररली अगर वैंडरवाल इंटरेक्शन के साथ स्टेबिलिटी ले लिया बायोमोलिक्यूल, तो दैट बिकम्स लाइक दैट इज लाइक जस्ट अ टेम्पररी वन, एंड दैट टू बहुत वीक से बॉन्ड से बना है, दैट इज वैंडरवाल। तो वो जल्दी जल्दी वो चेंज हो जाते हैं। अगर मेरे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी चेंज होगी तो फिर मैं फिर दोबारा लाइक अपने नॉर्मल अटेन कर लूंगी स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये कहाँ इंपॉर्टेंट होता है? दे आर इंपॉर्टेंट फॉर स्टेबलाइजिंग मेम्ब्रेन लिपिड्स एंड प्रोटीन हाइड्रोफोबिक एनवायरमेंट। हाइड्रोफोबिक फोबिक, अगर हम हाइड्रोफोबिक बोल रहे हैं तो मतलब भाई इनको पानी से बहुत डर लगता है। तो हमने लिपिड का ऑलरेडी पढ़ा था, और लिपिड के एग्जाम्पल में हमने फॉस्फोलिपिड का अरेंजमेंट देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किस तरीके से होता है। तो वैंडरवाल्स इंटरेक्शन, जैसे कि अगर सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ लाइक फ्रिक्शन आया, ठीक है, तो फ्रिक्शन आने से फिर भी कौन से इंटरेक्शन से वो स्टिल बाउंडेड रहेंगे, दैट इज वैंडरवाल्स इंटरेक्शन। बट ये वीक है, बट देन स्टिल इट helps in stabilizing the membrane lipids of membrane lipids and proteins in hydrophobic environment। तो ये बहुत जरूरी है कि only in hydrophobic environment this can act। अगर इसमें पानी डाल दिया तो फिर तो वैंडरवाल इंटरेक्शन पे पानी फिर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा कोवलेंट बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड, वैंडरवाल्स फोर्सेस और कोवलेंट बॉन्ड्स। तो कोवलेंट बॉन्ड हमारे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होते हैं। क्यों बॉन्ड होते हैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट? क्योंकि इसमें ये वो दो एटम से बनते हैं जिन दोनों ने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया। ठीक है, मेरा बेटा 1 साल का है, वो पढ़ता है शेयरिंग इज केयरिंग। ओके, मतलब वो वीडियोस देखता है शेयरिंग इज केयरिंग वाली, तो मुझे वो गाना याद आता रहता है। तो शेयरिंग इज केयरिंग, एंड इमेजिन द स्ट्रेंथ दैट इज देयर इन शेयरिंग। ओके, विच मेक्स दीज बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड की शेयरिंग। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट कहाँ होता है? इट इज इंपॉर्टेंट फॉर कनेक्टिंग मोनोमर्स एंड फॉर्मिंग लॉन्ग चेन्स इन प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब आप एक एग्जाम्पल बता दो कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर के बारे में, क्विकली आप डाल दो ये कमेंट सेक्शन पे। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, बहुत बार मेंशन भी किया अभी हमारे प्रीवियस स्लाइड्स में। तो कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर जो है उसको वो कनेक्टेड कैसे रहता है? कोवेलेंट बॉन्ड से, और उसी तरीके से वो डाइसैकेराइड और लाइक पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन बना लेता है। ठीक है, तो द आंसर इज टू द like simplest, the monomer of carbohydrate, that is glucose. So whoever has given this answer, kudos to you। okay, तो हमारा आ गया कोवेलेंट बॉन्ड, वैन डर वाल्स फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये हमारे 3 बेसिक इंटरेक्शन है जो बायोमोलिक्यूल्स को स्टेबिलिटी देते हैं। ओके, अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया, मेरे हाथ पीपीटी में आपको एक कंक्लूजन और रेफरेंस जरूर मिलेगा। मैं जब प्रिपेयर करती थी बायोकेमिस्ट्री, मुझे बायोकेमिस्ट्री बहुत बोरिंग लगता है, बट देन लाइक क्रिस्प इंफॉर्मेशन चाहिए, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं चाहिए। तो आप लेनिंजर और हिम्सन हुपर, उनकी भी लाइक ये दोनों इंटरनेशनल राइटर्स है, बट उनकी बुक बहुत क्रिस्प है और बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन अच्छे तरह डायग्रामेटिकली दिया है, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। सो यू शुड लाइक अबाइड बाय दैट। हम CSIR नेट क्लियर कर रहे हैं, क्रैश कोर्स बना रहे हैं, तो हम सिंपल करके क्रिस्प करके उसका सब कुछ बताएंगे। बट देन अगर आपको दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप कर रहे हो प्रिपेयर, या फिर आपको ज्यादा जानना है, या आपको आप अपने स्टिल आप यू आर परस्यूइंग MSc, देन यू कैन लाइक गो बाय दीज बुक्स, एंड दीज आर रियली गुड बुक्स। ओके, so biomolecules are essential. I just conclude by this, that is biomolecules are essential for maintaining the integrity and function of living cells. That is why they are called as building units of life. This I am adding, okay? So you should understand their structure, composition, and function. And this is very critical for advancing your knowledge
टू लाइफ प्रोसेसेस। इससे पहले कि हम कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन और ये सब में जाएं लाइक लाइफ साइंसेस के, तो आप उससे पहले ये हमारा बायोमोलिक्यूल्स का बेसिक ये सब जो हमने आज डिस्कस किया है, ये सब हमें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो थैंक you all, but this is not ending here. I am giving you a question on biomolecules, which we had just discussed here. So let's see who all of you will be able to answer this correctly, but this correct answer will be discussed in the next presentation. So you just tell me the answer, put it in the comment section, and I'll just go through it. Okay, so the question goes like this: which of the following is or are true about proteins that span biological methods? एक चीज बच्चों हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप आंसर कर रहे हो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसके कीवर्ड्स को हाईलाइट करो क्वेश्चन पेपर पे, या आपको अभी तो ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं तो आपको मेन उसके पॉइंट्स को दिमाग में स्टिक करना है। दैट इज यहाँ पे क्या लिखा, इज और आर, एक भी हो सकता है, सारे भी हो सकते हैं, कॉम्बिनेशंस दिए हैं तो ये भी है। सेकेंड है ट्रू, ट्रू है, ट्रू ट्रू स्टेटमेंट के बारे में जो सही है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के बारे में। proteins about proteins that span biological membrane, span means that form a part of the biological membrane। ठीक है, तो क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया कि प्रोटीन्स के बारे में कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है विथ रिगार्ड टू इट्स रोल इन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है प्रोटीन्स दैट स्पैन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स ऑफन कंटेन हेलिसेस। मैंने एक एग्जांपल बताया था डीएनए और डीएनए का हेलिक्स स्ट्रक्चर, तो उसी के बारे में दिया है, प्रोटीन्स दैट स्पैन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन ऑफन कंटेन हेलिसेस। सेकेंड है एमिनो एसिड्स वुड बी हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रोफोबिक, एमिनो एसिड्स को पानी से बहुत डर लगता है, इज इट ट्रू और लाइक व्हाट, फॉल्स? So third is an alpha helix is specially suited to cross a membrane because all of the amide hydrogen atoms and carbonyl oxygen atoms of the peptide backbone take part in intra-chain hydrogen bonds. Intra-chain matlab within the system only forms the chains of hydrogen bonds, thus stabilizing these polar atoms in a hydrophobic environment. तो भैया स्टेबिलिटी अगर हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट में ये अल्फा हेलिक्स को चाहिए, तो क्या वो ये एमाइड हाइड्रोजन एटम और कार्बोनिल ऑक्सीजन एटम जो है वो बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना के दे रहे हैं, या किस तरीके से हो रहा है, मतलब ये होता है कि नहीं होता है? बिकॉज द क्वेश्चन सेज वेदर दीज आर ट्रू और नॉट। Okay, so the first option is 1 and 2 options are correct. Second is 1 and third option is correct. Third is 1, 2 and 3 are correct. Or fourth is third and 2 are correct. So please leave your answer in the comment section. अगर आप नहीं भी श्योर हो फिर भी आप डाल दो, उसमें क्या जाता है, कमेंट्स पे जरूर डालो इसका आंसर। ओके, and do not forget to like, comment, share and subscribe our channel Adarsh Adarsh. Okay, thank you everyone.